Good morning, friends. Now, hope you have understood the first two chapters of geography. What we have seen, that was India's size and location and physical features of India. So, students, let's come to the new book, Economics. We'll go to the first chapter, a very nice, interesting chapter, a very small chapter, and very simple chapter. So, I hope you just try to listen and understand. And if any doubts, you can always ask me. So, the name of the chapter is The Story of. One second. The story of village Palampur. Now, if you see, you know what do you mean by a village? So now this village you see here is an imaginary village, or we can say hypothetical. Hypothetical means imaginary. Yeah, we are just taking a name. So Palampur is a village, hypothetical village. Now this village is like any other typical village of India. Even you can see here nearby. So there are certain facts that what is this village about, और इस विलेज में ऐसा क्या है या इस विलेज की खासियत क्या है, ये हम जान लेते हैं पहले, so that we can easily understand the chapter further. So like any other common Indian village, village Palampur is a hypothetical village, imaginary village. Hypothetical means imaginary, which is having about 450 families. छोटा सा गांव है with 450 families. It is 3 kilometers away from a big village called रायगंज. रायगंज से ये 3 किलोमीटर दूर है. रायगंज एक बड़ा गांव है compared to Palampur, and the nearest town to the Palampur is Shahapur. Understood? Simple. The village is well connected with the neighboring villages and towns. Well connected means anyone can go from this village to another village or another town. So the connectivity is good. Transportation is good. The village is well connected by the road. The roads are good. They are well connected. Everywhere you can find roads to go to any other village or any other town. And most of the houses are electrified. Means हम देख रहे हैं ये एक टिपिकल गांव है जो आप कहीं भी देख सकते हैं. रोड्स हैं वहाँ पे, आप एक गांव से दूसरी जगह जा सकते हैं वहाँ से. And almost all the houses are electrified. Means electricity is present there. All houses have electricity. Now what are other factors? There are 2 primary schools and 1 high school. Fine. There is government health center and a primary dispensary. Okay. So this was all about the village Palampur. Now going ahead, we will see. ये हमने देखा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं या किस तरह का गांव है वो. Now we will go ahead and see what are the main production activities. वहाँ पे होता क्या क्या है, वहाँ के लोग करते क्या क्या हैं. So when you go to the main production activities, now which is the common or which is the primary activity in a village? Yes, agriculture or farming. So we'll go ahead. Main production activity, farming. Farming is the main production activity of the village Palampur. I hope you understood. हर अगर आप देखें आपके आसपास गांव में तो that is the main activity of the people. Other than farming also people do certain activities. What are those? Now you see non-farming activities such as dairy. आप देखेंगे आज भी छोटे छोटे गांव में डेयरीज हैं, बिकॉज व्हाट हैपन्स जनरली जो लोग फार्मिंग करते हैं वो साथ में कैटल भी ब्रीड करते हैं. उनके पास में काउज बफेलोज होती हैं, सो दे ब्रीड द कैटल ऑल्सो एंड दे सेल द. सो ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. दे सेल द मिल्क ऑल्सो. यू कैन सी देर आर सर्टन स्मॉल शॉप्स. सो देर आर ट्रेडर्स, स्मॉल शॉप्स होती हैं. सो द शॉपकीपर सेल्स द प्रोडक्ट्स और गुड्स in order to earn profit. So this is also a non-farming activity. Other than this, we see आपके छोटे छोटे गाँव में we have autos, we have buses, small rickshaws. So these are all comes under transport. So this is also a non-farming activity. कुछ small scale industries होती हैं. We cannot say industries but manufacturing units like clothes बनाते हैं लोग, क्लोथ्स सिलते हैं, वीविंग ऑफ क्लोथ्स, दैट इज एन एग्जाम्पल. दे मेक सर्टन गुड्स फ्रॉम वुड, कारपेंटर शॉप्स आर देयर. सो दे आर सर्टन स्मॉल यूनिट्स. ये बहुत बड़े यूनिट्स नहीं होते इन द लार्ज स्केल, दे आर वेरी स्मॉल. दिस यूनिट्स आर इन देयर होम्स और इन देयर फील्ड्स वेयर दे डू द फार्मिंग. ओके, नाउ मेजर थिंग इज, नाउ दीज आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड what are the factors for the production
or factors of production. If you remember in class 8 we have seen when we set up the industries there are certain factors like land, labor, power, capital. So all these things are for industries. Similarly for the production in the village Palampur there are certain factors. What are these factors? First factor is land. Not only land but all natural resources, maybe like water, forest, minerals. This is very important for production. एक जनरल स्टेटमेंट है. हम लैंड क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज द मेजर फार्मिंग एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर और फार्मिंग. सो लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. इफ देर इज नो लैंड वी कैनॉट डू फार्मिंग. Second is labor. Now who are labor? Labor are people who do the work, or people who work, they are called laborers. Now for any production we required laborers, either skilled, semi-skilled. Sorry, here the spelling has been mistaken. I think it should be semi, S-E-M-I, semi, not demi. Okay, fine. So we required skilled laborers or semi-skilled laborers और नॉर्मल लेबर्स. अब कुछ हमाल होते हैं जो एक बोरा उठा के यहाँ से वहाँ रखते हैं, ट्रक को लोड करते हैं, अनलोड करते हैं. वी डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एजुकेशन और स्किल्स फॉर दैट. वी रिक्वायर प्योर फिजिकल कैपेसिटी. सो लेबर, लैंड एंड लेबर. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फिजिकल कैपिटल. लास्ट ईयर हमने देखा 8th क्लास में इट वॉज जस्ट कैपिटल. नाउ वी हैव फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल दो तरह के होते हैं. वन इज fixed capital and one is working capital. Now we'll see what it is. Fixed capital is which is fixed. Machineries. हम लेते हैं एग्जाम्पल फार्मिंग का ही लेते हैं. सो इफ यू सी फिक्स्ड कैपिटल इज ट्रैक्टर्स. आपने ट्रैक्टर खरीद लिया फार्मिंग करने के लिए, इट इज़ ए फिक्स्ड कैपिटल. आपके पास में फिक्स्ड है, वो कई साल तक आपके पास में वो ट्रैक्टर रहेगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं. उस तरह से कुछ मशीनरीज हैं जो आप यूज़ करते हैं. आपने बुलक कार्ट लिया है, अगर ऑक्स यूज़ कर रहे हैं. These are all fixed capitals. Tools, machineries, these are all fixed capitals. Working capital is your raw material. Seeds यूज़ कर रहे हैं आप फार्मिंग में, they are working capital. आप उसके इस्तेमाल कर रहे हैं वर्क करने के लिए, वो ख़त्म हो जाता है तुरंत. देन मनी, आपको मनी यूज़ लगता है बिकॉज ऑफ सीड्स परचेज करेंगे, आप कुछ फर्टिलाइजर्स परचेज करेंगे. सो बिकॉज ऑफ दिस दे रिक्वायर, दे आर कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. ओके, सॉरी. सो दे आर कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. अंडरस्टूड. फिजिकल कैपिटल दो तरह के हैं. फिक्स्ड जो काफ़ी सालों तक चलता है साथ में, मशीनरीज, टूल्स. एंड वर्किंग कैपिटल जो हम तुरंत वर्क के लिए यूज़ कर लेते हैं, लाइक मनी एंड रॉ मटेरियल्स. नाउ इन तीनों चीज़ों को मिला के कुछ अगर हमको आउटपुट देना है तो फॉर दैट वी रिक्वायर ह्यूमन कैपिटल. अब सोचिए कि लैंड है, लेबर है, हमारा फिजिकल कैपिटल है. Now how to do this? So we require certain entrepreneurship, or we can say a kind of mind which will, वो एक माइंड रहेगा जो यूज़ करेगा लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल. सपोज आई एम अ फार्मर, आई हैव लैंड, आई हैव लेबर, आई हैव फिजिकल कैपिटल, बट इफ आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज ऑफ डूइंग दिस थिंग्स, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू द आउटपुट और टेक द आउटपुट. सो फॉर दिस आउटपुट what we require is called as the human capital. Now what do you mean by human capital here? It is ability to put together land, labor and physical capital and produce output. ये तीनों को मिला के अगर हम आउटपुट निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हमें ज़रूरत है ह्यूमन कैपिटल की. बिकॉज यू हैव टू गिव योर ऑर्डर्स टू द लेबर, यू हैव टू यूज़ योर फिजिकल कैपिटल अकॉर्डिंगली एंड यू हैव टू यूज़ द लैंड प्रॉपरली. फॉर दिस यू रिक्वायर वन पर्टिकुलर माइंड और वॉट वी से एज ह्यूमन कैपिटल. आई होप अंडरस्टूड. 4 मेन फैक्टर्स हैं. 4th फैक्टर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इट्स जस्ट कि these 3 factors have to be used by a particular human being or a group of human beings to produce an output. This is called as human capital. Now we see, हमने देखा इस स्लाइड में सबसे टॉप लाइन क्या है, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुर. Now we will see how the farming is done or what are the issues or features of agriculture or farming in Palampur. So going ahead, we will see farming in Palampur. Now here we can say the land is fixed. पूरे वर्ल्ड में लैंड फिक्स्ड है. देयर आर सर्टन पोर्शन ऑफ वाटर एंड 33% ऑफ लैंड. सिमिलरली एवरी विलेज और एवरी टाउन और एवरी सिटी और एवरी कंट्री दे हैव अ फिक्स्ड लैंड. नाउ व्हाट हैपेंड इन पालमपुर? कुछ फिक्स्ड लैंड था जहाँ पे कल्टीवेशन होता था, बट एज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर फूड ऑल्सो इंक्रीज्ड. So certain wastelands, barren lands, they were used under the cultivation. फिक्स जगह थी पालमपुर में जहाँ पे खेती होती थी,
बट क्या हुआ कि आफ्टर द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन दे रिक्वायर्ड मोर लैंड फॉर प्रोड्यूसिंग मोर ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स. सो व्हाट दे डिड, जो कुछ वेस्ट लैंड था, जो कुछ ज़मीनें थी खाली पड़ी थी, वहाँ पे उन्होंने कल्टीवेशन शुरू कर दिया. सो एट द एंड देयर वॉज ए टाइम, एक टाइम आ गया जहाँ पे और लैंड बचा ही नहीं एग्रीकल्चर करने के लिए. लैंड वॉज फिक्स्ड कि इतना लैंड है, इसमें ही आपको एग्रीकल्चर करना है. बट द पॉपुलेशन स्टॉप हुआ क्या? नो, पॉपुलेशन वॉज स्टिल इंक्रीजिंग. सो नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन, कैन दे ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? लैंड तो उतना ही है, लेकिन अभी पॉपुलेशन की डिमांड्स को मीट करना है. सो कैन वी ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? Yes. How? We'll see in the coming slides. The people of Palampur started multi-cropping. Multi-cropping means in a year they will take 2 to 3 crops, different crops. That's called multi-cropping. Multi means एक से ज़्यादा. Cropping means crops. So they take more than one crop in a year. Now how was this possible? This was possible only because of very well developed irrigation system. काफ़ी पानी था, they used tube wells or what we call bore wells, and they started irrigating on a higher level. And this irrigation was supported by electricity, because कुएं से पानी निकाल के देना है तो it's quite physical labor, but when we talk about bore wells or tube wells, it requires electricity to pump the water from below the earth. So good electricity was there and good irrigation system was there, so they were able to start the multi-cropping. Now the next point is, okay, just we'll see this. अब ये जो पॉइंट है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. We'll come to this first. Yeah, fine. Now land is fixed. अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, 1950 में टोटल इंडिया का जो एरिया था विच वॉज अंडर कल्टिवेशन, इट वॉज अराउंड 120 मिलियन हेक्टेयर्स. हेक्टेयर्स इज स्टैंडर्ड थिंग विच वी यूज अक्रॉस इंडिया फॉर मेजरिंग द लैंड. सो 1950 में 120 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यूज हो रहा था फॉर कल्टिवेशन. बट एज द डिमांड इंक्रीज, कुछ फॉरेस्ट काटे गए, वहाँ पे कल्टिवेशन शुरू हुआ. कुछ वेस्ट लैंड पड़े थे, वहाँ पे कल्टिवेशन शुरू हुआ. कुछ बैरन लैंड्स थे, बैरन मीन्स बंजर ज़मीनें, वहाँ पे उन्होंने उनको ठीक करके फर्टिलाइजर्स यूज़ करके उनको यूज़ किया कल्टिवेशन के लिए. So by 2012, in 62 years, the total agricultural land was around 155 million hectares. देख रहे हैं आप, 35 million hectares का land increase हुआ है in this time. So people started taking lands or they started using waste lands and other forests for doing the agriculture. Now coming to the next point. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s के बाद में ये आफ्टर बंगाल फेमाइन, इट वॉज वेरी क्लियर दैट वी रिक्वायर सर्टन थिंग्स वेयर वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. सो देयर केम एंड दे इंट्रोड्यूस HYV. इट्स एन इम्पॉर्टेंट टर्म, ये आपको फुल फॉर्म आना चाहिए इसका. हाई यील्डिंग वेराइटीज. हाई मीन्स यू नो व्हाट इज हाई? यील्डिंग, प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करते हैं, यील्ड देते हैं, वेराइटीज, उस तरह की वैरायटी. ये एक सीड्स की वैरायटी है, वी कॉल इट सीड्स, HYV सीड्स. सो दिस सीड्स, अगर एक नॉर्मल ट्रेडिशनल सीड है, अगर वो आप यूज़ करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी. बट दीज आर डिजाइंड बायोटेक्नोलॉजिकली, सो दे गिव यू मोर आउटपुट. केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इसका इंट्रोडक्शन हुआ. सो विद दिस 3 हायर यील्ड्स वेर पॉसिबल. ज़्यादा, अभी 1 एकड़ में, या 1 एकड़ में अगर आप 1 हेक्टेयर में अगर आप ट्रेडिशनल यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से 1 क्विंटल गेहूँ निकाल सकते हैं. तो यूजिंग HYV, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, यू कैन टेक अराउंड 3 to 4 क्विंटल्स ऑफ वीट. समझ रहे हैं? 1 हेक्टेयर में ट्रेडिशनल सीड्स, ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स, ट्रेडिशनल पेस्टिसाइड्स यूज़ करके आप 1 हेक्टेयर में 1 क्विंटल गेहूँ यील्ड करते हैं और आउटपुट लेते हैं. But because of HYV, high yielding varieties, now it is possible in 1 hectare to produce 3 to 4 quintals of wheat. So this gives more productivity. Okay. Now in Palampur, with the help of high yield variety seeds, yield went up to 3,200 kilograms per hectare from 1,300 kilograms per hectare from traditional variety.
सो जब ट्रेडिशनल वैरायटी यूज़ कर रहे थे पालमपुर के लोग, तो उनका जो आउटपुट था पर हेक्टेयर इट वॉज 1300 केजीज। एक हेक्टेयर में वो 1300 केजीज का वीट ले रहे थे। बट आफ्टर यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी इट वेंट अप टू 3200 kilograms per hectare. So almost if you see it is 2.5 times. So इतना 2.5 गुना उनका जो था प्रोडक्टिविटी बढ़ गया बिकॉज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। बट इससे तो बढ़ गई प्रोडक्टिविटी, फूड ग्रेन्स हो गए, लेकिन कुछ नुकसान भी हुए इससे। व्हाट वेर दोज? इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, सॉइल इज लूजिंग इट्स फर्टिलिटी। सॉइल नेचुरल एक फर्टाइल चीज़ है, वहाँ पे फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली रिन्यू होती रहती है। सो व्हेन वी कंटिन्यूसली यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, दिस केमिकल फर्टिलाइजर्स वो उस टाइम में जो है वो पेड़ों को न्यूट्रिशन देते हैं, बट दे गो डाउन द लैंड एंड दे कैन पोल्यूट द वाटर एंड इवन दे लूज द फर्टिलिटी। सो वंस इफ यू स्टार्ट यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर रेगुलरली, आपको दोबारा उसको यूज़ करना पड़ेगा और हाई क्वांटिटीज़ में यूज़ करना पड़ेगा। शायद अगर आप आज 1 kg यूज़ कर रहे हैं 1 हेक्टेयर के लिए केमिकल फर्टिलाइजर, 5 साल बाद में आपको 2 kg यूज़ करना पड़ेगा। आफ्टर अनदर 5 years 4 kgs. So the cost also goes up. So one thing is, when we use lot of chemical fertilizers or continuous use of fertilizers, they are responsible for losing the fertility of the land or the soil. Second, हमने देखा इरिगेशन था। सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, हम कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर्स का। सो इससे क्या हो रहा है कि जो वाटर टेबल है इट इज गोइंग डाउन, सो वी आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर। अंडरस्टूड? दीज आर द 2 points which are disadvantages of high yield varieties or more production in the farming. So this was all about the farming. Now apart from this, if you see the distribution of land, जो लैंड है पालमपुर में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था इट्स ऑल्सो वेरी टिपिकल। जो होता है जनरली आप देखेंगे ये गांव में इस तरह का होता है। सो विल सी फार्मिंग इन पालमपुर, दिस इज द कंटिन्यूड स्लाइड। इफ यू राइट द नोट्स इट शुड बी इन कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। 1/3 ऑफ द फैमिलीज, यानी कि अगर 450 फैमिलीज हैं तो 150 फैमिलीज के पास में लैंड ही नहीं है, दे आर लैंडलेस। सो आउट ऑफ 450 families, 150 families they don't have any land in Palampur. Now another 240 families they have very small plots of land, not more than 2 hectares. 2 हेक्टेयर से नीचे लैंड वाले लोग जो है वो है 240। अब बचे 60 लोग, 60 फैमिलीज। तो 60 फैमिलीज के पास में मोर देन हाफ ऑफ द लैंड। सो ये वो फार्मर्स हैं जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स कहलाते हैं, इनके पास बड़े लैंड्स हैं। कुछ फार्मर्स के पास में मोर देन 10 hectares of land. So they have very big lands to use. Understood? This is for your understanding. 1/3 people have no land. 1/3 families they are landless. 240 families have very small plots, less than 2 hectares of land, and the 60 families remaining they own over the another 50% of land, and they are called as medium or large farmers. Now हमने देखा था फैक्टर्स ऑफ फार्मिंग। इसमें देखेंगे फार्मिंग में कि लेबर इज रिक्वायर्ड। नाउ लेबर फॉर फार्मिंग, नाउ जो स्मॉल फार्मर्स जो हैं, हमने देखा कि 3 तरह के वहाँ पे हमने डिवाइड किया था। वन इज लैंडलेस, छोड़ दीजिए, बिकॉज लैंड नहीं है तो फार्मिंग नहीं करेंगे, उनको लेबर्स की जरूरत नहीं है। स्मॉल फार्मर्स हु ओन लेस देन 2 hectares ऑफ लैंड, व्हाट दे डू, दे themselves work along with their family members and they manage the work of farming. They don't require laborers from outside. But the large, medium or large farmers, what they do, they require laborers. So who are these laborers? So these laborers are from families who don't have land. अब जिनके पास लैंड नहीं, क्या करेंगे? They will do the labor work for this medium and large farmers. Even the people who have small plots of land, they do work in their farm and then they go for work to the medium and large farmers. So this kind of labor system they follow. Now these laborers who go for the farming activity, जिनके पास में फार्म लैंड्स हैं, they can ask your father that they are either paid on daily basis, रोज के हिसाब से उनको पैसा मिलता है कि आप जितने दिन काम करेंगे उस हिसाब से पैसा मिलेगा, पर डे 200 300 जो भी हो। दे आर पेड ऑन द बेस ऑफ एन एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट ऑफ लैंड है, आपको पूरा काटना है, तो इसके बाद में आपको इतना वो फिक्स हो जाएगा। आप 1 दिन में काटें, 2 दिन में काटें, उतना पैसा आपको हम दे देंगे। जो हम बोलते हैं मराठी में गुत्त देते हैं हम, कि इतना काम करना है आपको, 1000 मिलेंगे आपको, चाहे वो 1 घंटे में करें 1 दिन में करें। एंड देन वी हैव ईयरली बेसिस। ईयरली बेसिस में हम हमारे खेतों में एक नौकर रखते हैं जो साल भर काम करता है। हम बोलते हैं मराठी में गडी, अपन गडी ठेवतो शेतात,
that is on yearly basis. Now what the government has decided, government has taken a step that these laborers should get a minimum wages. हमने पढ़ा था 8th क्लास में, there is what we call as minimum wages act. याद है आपको? अगर नहीं तो आप अपने नोट्स देखिए, उसमें होगा, राइट? सो इन मिनिमम वेजेस एक्ट गवर्नमेंट हैज़ क्लियरली प्रेस्क्राइब्ड फॉर फार्म लेबर्स, जो लोग खेतों में काम करते हैं, फार्म लेबर्स, द मिनिमम वेजेस शुड बी 300 रुपीज़ पर डे, जो आज भी फॉलो नहीं होता है. दिस वॉज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, बट द लेबरर्स आर पेड वेरी लेस. क्यों? क्योंकि लेबर्स खुद काम करने के लिए तैयार हैं कम वेजेस में. दे आर रेडी टू वर्क फॉर लेस वेजेस बिकॉज ऑफ द हाई कॉम्पिटिशन इन द वर्क. इतने लेबर्स हैं, काम कम है. सो व्हेन आई गो टू द प्लेस वेयर आई फाइंड लेबर्स, आई टेल देम दैट आई विल पे यू 200. So if one labor says no, I want 300, I have 10 other laborers who are ready to work for me for 200 rupees. So because of this high competitions, laborers do the work on very low wages. समझ गए? क्योंकि कंपटीशन इतना है कि चलो यार 200 रुपये तो मिल रहे हैं, अगर हमको काम नहीं मिला तो वो भी नहीं मिलेगा. सो दे आर रेडी टू वर्क, एंड सो द फार्मर्स हु आर मीडियम और लार्ज फार्मर्स, दे डू द and they give the wages on very less scale, which is prescribed by the government, which is 300 rupees per day. Understood? This was about the labor of the farming. Now we see we also need capital for farming. जैसे हमको देखा था इंडस्ट्रीज में कैपिटल लगता है, कैपिटल हमको लगता है इन केस ऑफ फार्मिंग ऑल्सो. वी हैव टू परचेज सीड्स, वी हैव टू परचेज फर्टिलाइजर्स, वी हैव टू परचेज पेस्टिसाइड्स, मशीनरीज, हमको मशीन्स ठीक करनी है, कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पैसा लगता है. सो दिस इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मिंग. व्हाट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट? कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड मशीनरीज. नाउ वेयर दिस दिस कैपिटल कम फ्रॉम? ये कैपिटल कहाँ से आता है? फॉर स्मॉल फार्मर्स दे बोरो फ्रॉम द मनी लेंडर्स, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स और ट्रेडर्स. अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कहाँ से लाते हैं ये पैसा? दिस कैपिटल इट इज़ फ्रॉम जो बड़े ये हैं लार्ज फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, और फ्रॉम मनी लेंडर्स जो ब्याज पे देते हैं पैसा, और फ्रॉम ट्रेडर्स. देखा होगा कई आपकी दुकानें होती हैं जहाँ पे वो सीड्स बेचते हैं, जहाँ पे वो फर्टिलाइजर्स बेचते हैं, वहाँ से उधार लेते हैं. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई. जो इंटरेस्ट उनको चुकाना पड़ता है इस लोन के ऊपर, या जो पैसा वो जो वो ले रहे हैं उनसे, दे हैव टू पे अ वेरी लार्ज अमाउंट. बड़े फार्मर्स जो हैं, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, दे हैव देयर ओन सेविंग्स. वो अपनी सेविंग्स खुद करते हैं और वो सेविंग्स यूज़ करते हैं उनके कैपिटल की तरह से. सो वाई सेविंग्स आर मोर फॉर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक. So small farmers take money from large farmers, money lenders or traders who sell inputs for cultivation. The rate of interest is very high and farmers face difficulty in repaying the loan. Quite simple. Large farmers, medium or large farmers have their own savings for farming. उनकी खुद की savings है, they use it as a capital. Now after this all is done, after the farming activity is done, we get certain output. हमें कुछ आउटपुट मिलता है. हमने गेहूँ लगाया, हमको गेहूँ मिलेगा एज एन आउटपुट. हमने शुगर केन लगाया, शुगर केन मिलेगा. वॉट एवर वी डू, वी गेट सर्टन आउटपुट. सम पार्ट ऑफ द आउटपुट इज केप्ट फॉर आवर पर्सनल यूज. फार्मर्स क्या करते हैं, अगर उन्होंने गेहूँ लगाया तो कुछ गेहूँ वो खुद के यूज़ के लिए रखते हैं, एंड जो सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, दैट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट फॉर मनी. अब सोचिए, नाउ विल कम टू हियर इन वन पर्टिकुलर पॉइंट, कि जो स्मॉल फार्मर्स है जिनके पास में 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, उनका जो मेजर आउटपुट है, उनका मेजर पोर्शन, मैक्सिमम पोर्शन वो खुद रखेंगे यूज़ करने के लिए, और थोड़ा पोर्शन बचेगा वो सेल करेंगे, तो उनका प्रॉफिट भी बहुत कम होगा, पैसा बहुत कम आएगा उनके पास में. इसीलिए हमने बात किया था कि उनको ज़रूरत पड़ती है स्मॉल फार्मर्स को पैसा लेने की फ्रॉम द मनी लेंडर्स एंड बिग फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स और ट्रेडर्स. ऑन द सेम हैंड व्हेन वी सी द लार्ज फार्मर्स, दे हैव वेरी बिग लैंड्स. सो उनका कुछ पोर्शन वो रखते हैं अपने लिए, क्योंकि उनका आउटपुट ज़्यादा है, तो बाकी जो बड़ा पोर्शन है वो जाता है मार्केट में सेल करने के लिए. उनसे उनको बहुत पैसा मिलता है, इसलिए वो सेव करते हैं, एंड उनकी सेविंग बन जाती है, वो जो यूज़ करते हैं वो फार्मिंग के लिए आने वाले सीजन्स में. सो विल जस्ट गो क्विकली थ्रू इट. सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, सरप्लस मीन्स विच इज़ एक्स्ट्रा, आपके जो आपको यूज़ में आने के बाद में जो बच गया, दैट इज कॉल्ड सरप्लस. The surplus farm products of small farmers is quite less. हमने अभी डिस्कस किया, एज कम्पेयर टू लार्ज फार्मर्स. सो अगर कंपेयर करते हैं लार्ज फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, तो स्मॉल फार्मर्स का बहुत कम है.
quite less, very less. So the profit is mainly earned by the medium and large farmers, which they save for their future use. Next, if you see, the large farmers spend this profit by giving loans to, अब ये जो प्रॉफिट्स आए हैं स्मॉल फार्मर्स सॉरी लार्ज फार्मर्स के पास में, वो कहाँ यूज़ करते हैं? दे जनरली गिव इट एज अ लोन टू द स्मॉल फार्मर्स एंड और दे यूज इट फॉर देयर फार्मिंग, फॉर द इंक्रीजिंग देयर फिक्स कैपिटल. मशीन्स ये लाएंगे, वो कुछ फर्टिलाइजर्स लाएंगे, केमिकल्स, वॉट एवर इट इज़, फॉर देयर फार्मिंग. सो दिस इज हाउ दे यूज देयर सरप्लस और द प्रॉफिट्स. दिस इज ऑल अबाउट द फार्मिंग एक्टिविटीज. नाउ वी विल सी, हमने देखा था स्टार्टिंग में दो पॉइंट्स थे. वन वाज फार्मिंग एक्टिविटी विच वाज मेजर, हमने देख लिया. सेकंड एक्टिविटी इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. नाउ व्हाट आर दोस? इन पालनपुर वी सी डेयरी. जनरली फार्मर्स ऑल्सो रियर मीन्स पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए. रियर काउज एंड बफेलोज, दे सेल द मिल्क एंड अर्न सम मनी आउट ऑफ इट. वेरी क्लियर. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आर डन इन पालनपुर अदर देन फार्मिंग. फार्मिंग के अलावा भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है. नाउ हाउ? दीज आर वेरी स्मॉल यूनिट्स, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं. लाइक जैगरी प्रोडक्शन. जैगरी मीन्स गुड़. जो शुगर केन से शुगर बनती है, ओके, शुगर केन से गुड़ भी बनता है. सो ये गुड़ बहुत बड़ी फैक्ट्रीज में नहीं बनता है, छोटे छोटे खेतों में बनाते हैं ये लोग, देखा होगा आपने, या अपने पेरेंट्स से पूछे बताएंगे आपको ये. सो दीज आर वेरी स्मॉल यूनिट्स. ये पालमपुर में होता है. वीविंग, कपड़े सिलाई का मतलब बुनाई का काम होता है, कपड़े बनते हैं वहाँ पे, छोटे छोटे यूनिट्स में घरों में बनाते हैं. दे मेक स्मॉल प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस यूनिट. यहाँ पे छोटा छोटा प्रॉफिट बनता है इनका. शॉपकीपर्स आर देयर. दुकानें हैं कई सारी, हर गांव में दुकानें हैं. आज देखते हैं छोटे छोटे गांव में भी दुकानें हैं. सो हियर आल्सो सम शॉप्स लाइक ग्रॉसरी, किराना की दुकानें, स्टेशनरी, बुक्स, पेंसिल, पेन दुकानें हैं, गारमेंट्स, कपड़ों की दुकानें हैं. सो दीज आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. एंड ट्रांसपोर्ट, हमने देखा स्टार्टिंग के स्लाइड में कि जो पालमपुर है वो उनके पास में 3 किलोमीटर दूर पे एक गाँव है विच इज़ रायगंज, एंड अ टाउन नियर बाई इज शाहपुर. सो टू टेक द गुड्स, सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम Palampur to these places, they require transport in kind of tempo, truck. People are moving from here to there, so they require rickshaws, bullock carts, anything it can be. So transport is also a means of business other than farming activities. Understood? So this is all about the chapter. इतना ही चैप्टर में. आपको अभी नोट्स स्लाइड्स में से नहीं करनी. आई हैव गिवन यू नोट्स, सो यू कैन से रिविजन नोट्स पालमपुर के बारे में, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. You can pause the video, go through the notes. ये आपको पूरे नोट्स लिखने हैं. Can you see this? I think it's very quite readable. नहीं तो आप उसको zoom भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. And non-farm activities. So this we end the chapter. Very soon I'll be sharing with you the exercise, because बहुत सारे activities हैं. We don't want to go into activities. We will go mainly in the exercise. So I will send you very shortly, either in Telegram or in WhatsApp. I hope you enjoyed this session. Thank you. Have a nice day.